Yes, very good morning class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. This class we were doing first chapter from history. We have already discussed causes of 1850 uprising of 1857. We have discussed some political causes. After that, we have socio-religious causes of revolt 1856. Today we will start from socio-religious causes. First है fear of mass conversion. First one causes for revolt 1857, that is fear of mass conversion. Many activities of the Christian missionaries and that of government created panic among the masses that they would be converted to Christianity. The teaching of Christianity doctrine was made compulsory in the schools set up by the Christian missionaries. तो क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियन थे, तो उनका फोकस था कि मैक्सिमम लोगों को क्रिश्चियनिटी में लेकर आना. तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी की टीचिंग कंपलसरी कर दी सारे स्कूल्स में. The official openly praised the Christian doctrine in mosques and temples. Temples में, mosques में, हर जगह क्रिश्चियन रिलीजन की प्रीचिंग स्टार्ट थी. The Missionary Society of America established a press at Agra for the propaganda against the Hindu religion. तो जो मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका थी, उन्होंने भी आगरा में एक प्रोपेगेंडा किया हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट. द मिशनरीज openly and everywhere condemned the Hindu scriptures, idol worship and Hindu and Muslim doctrines and customs they were action in some of the tribal areas and sometimes created hostile feelings among the tribes by disturbing their social, cultural and economic lives. तो क्या था, मशीनरीज हर जगह खुल रही थी जिसमें क्या किया जाता है, हिंदू स्क्रिप्चर को उनके मूर्ति पूजा की और मुस्लिम डॉक्ट्राइन कस्टम्स को बुरा बोला जाता था और क्रिश्चियनिटी को की फेवर की जाती थी. मैनी टेम्पटेशंस वर ऑफर टू मेक कन्वर्जन बाय गिविंग द इंडियन ब्राइड्स प्रमोशन द रिवार्ड्स. तो बहुत से टेम्पटेशंस दिए जाते थे इंडियंस को अपना कन्वर्जन करने के लिए. रिश्वत दी जाती थी, प्रमोशंस दिए जाते थे, रिवार्ड दिए जाते थे कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए. द स्टडी ऑफ बाइबल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स. प्रिजनर्स इन जेल्स वर instructed in Christianity. Police force were used for converting people to Christianity. The missionary established chaplains and churches for the propagation of Christianity. Christianity की प्रोपेगेशन के लिए, प्रीचिंग के लिए, मैसेज के लिए मंच और चर्च एस्टेब्लिश की गई थी. अ क्रिश्चियन प्रीस्ट वाज मेंटेन्ड इन द आर्मी. ऑर्फन्स एंड विक्टिम्स ऑफ क्लेमिटीज वर ऑफन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जो ऑर्फन में रहने वाले लोग थे, जो क्लेमाइटीज के शिकार विक्टिम थे, उनको भी कन्वर्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी. Next socio-religious reason for the revolt is the laws that interfered with the religious customs of the people. There were many laws which interfered with the religious custom of the people. First one is General Service Enlistment Act of 1856. सबसे पहला जो laws था जो लोगों के religious custom में interfere कर रहा था, that was General Service Enlistment Act of 1856. Under this act, new recruits were required to serve anywhere in India or overseas. This caused a great alarm amongst the Indian soldiers, as according to the Hindu custom, crossing the sea was contrary to their religion. तो जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी नौकरी जो है वो कहीं भी लग सकती है.
इंडिया के अंदर जा समंदर पार भी। इसके साथ क्या हुआ, जो हिंदू कम्युनिटी थी वो उनके धर्म के अकॉर्डिंग समंदर को पार करना बुरा माना जाता, उनके कस्टम के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इसके साथ जो हिंदू रिलीजन वाले लोग हैं वो डिसअपॉइंट हो गए और रिवॉल्ट के लिए रेडी हो गए। द रिलीजियस इनकम्पिटेंस लॉ, रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1850। तो रिलीजियस इनकम्पिटेंस लॉ, जो रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1850 के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन चेंज हिज रिलीजन ही कुड रिमेन द हेयर ऑफ हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। According to the people, the law was enacted to promote the conversion of Hindus to Christianity. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई हिंदू अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है तो उसके हेयर सन को, एडॉप्टेड सन को भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसे भी प्रोवाइड की जाएगी। इसका मेन इस रिलीजियस इनकम्पिटेंस लॉ का मेन फोकस क्या था, अकॉर्डिंग टू द पीपल द लॉ वाज इनेक्टेड, क्यों इनेक्ट किया गया था, टू प्रमोट द कन्वर्शन ऑफ हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट legalize the widow remarriage. This also not liked by the orthodox Hindus who favored sati. जो orthodox Hindus थे उनको ये भी widow remarriage act भी पसंद नहीं आया और वो इसके अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। जो रेलवे की फैसिलिटी, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हैड क्रिएटेड सस्पिशियस एंड फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो इन्होंने भी लोगों के माइंड में डर पैदा कर दिया। दे थॉट दैट दीज मेजर्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी। तो इंडियन पीपल को लग रहा था कि ये जो इंट्रोडक्शन हुई है रेलवे टेलीग्राफ की फैसिलिटी दी जा रही है ब्रिटिशर्स की साइड से, ये भी क्यों की गई है, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। इट ऑल्सो मीन दैट द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड अनटचेबल वुड सिट इन द सेम कंपार्टमेंट एंड बाय देयर टिकट्स फ्रॉम द सेम विंडो एज पीपल ऑफ द सुपीरियर कास्ट इंक्लूडिंग द ब्राह्मण्स। तो इससे क्या लग रहा था, जो सुपीरियर कास्ट में आते थे ब्राह्मण्स लोग, उन लोगों को लग रहा था कि जो रेलवे की फैसिलिटी दी जा रही है जो इसलिए दी जा रही है ताकि हमारी कास्ट को उसकी सिक्योरिटी ख़त्म करने के लिए। वो सोच रहे थे इससे क्या होगा कि एक ही लाइन में हम लोग टिकट्स लेने के लिए लगेंगे और एक ही कंपार्टमेंट में हमें सब लोगों को बैठना पड़ेगा। द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कंसिडर्ड इट एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन द कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स सोसाइटी एंड डिफाइल इट्स रिलीजन। तो क्या था, उन लोगों को सुपीरियर कास्ट वाले जो खुद को मानते उनको लग रहा था कि ये हमारी रिलीजन के अकॉर्डिंग है, इसके साथ हमारी कास्ट में सुपीरियरिटी नहीं रहेगी। तो देयर वॉज ऑल्सो अ रूमर दैट टेलीग्राफ पोल्स वुड बी यूज्ड फॉर हैंगिंग पीपल हु वर reluctant to embrace Christianity, and railway tracks would be used to throw people in front of the railway engines and trains who were against the company's rule. Thus, the modern innovation threatened the old social order and created unrest among the people. तो ये भी रूमर्स थी कि जो पोल्स लगाए गए हैं टेलीग्राफ के लिए वो इस चीज़ के लिए लगाए गए हैं ताकि जो क्रिश्चियनिटी नहीं ले रहे, जो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, उनको वहाँ टांगने के लिए, लटकाने के लिए, मारने के लिए। और जो रेलवे ट्रैक्स बने हैं ये भी उन लोगों के लिए ही बने हैं जो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे और उन्हें यहाँ मार दिया जाएगा। तो ये रूमर्स थी। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट सोशल रिलीजियस कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857 इज फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. Christian machinery and government schools introduced the teaching of English in their institutions, particularly after 1833 AD. This implied the shifting of emphasis from Oriental learning. तो क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन सारे इंस्टीट्यूशंस में कंपलसरी कर दी गई। तो उसके साथ क्या हुआ कि जो अदर पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू ये लैंग्वेज थी इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई। तो ये लैंग्वेज देने वाले दो पंडित मुल्लाज थे जो ये उर्दू, अरेबिक, संस्कृत की एजुकेशन दे रहे थे स्कूल्स में, रिसेंटेड दिस चेंज, उन लोगों को ये चेंज पसंद नहीं आई। एज दे सॉ इन इट एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज द स्टडी ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू लिटरेचर। उनको लगा कि ये
जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस की जा रही है इसीलिए की जा रही है ताकि इस्लामिक और हिंदू लिटरेचर को ख़त्म कर दिया जाए। द न्यू स्कूल्स प्रोवाइडेड एजुकेशन टू ऑल इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। दिस वॉज नॉट लाइक बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड द अपर क्लास हिंदूज। तो जो न्यू स्कूल्स है उन्हें सब लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की गई। कास्ट रिलीजन को मैटर नहीं किया जाता था उस एजुकेशन में। इसको देखकर भी जो ऑर्थोडॉक्स है उन्हें लग रहा था कि ये अपर क्लास को ये चीज़ पसंद नहीं है, ऑर्थोडॉक्स लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, द र्यून ऑफ इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो क्या बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स से आने के पहले इंडिया वॉज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर था कॉटन टेक्सटाइल का। बट एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इट्स शेयर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जब से 19th सेंचुरी की स्टार्ट हुई तो इसका शेयर कम होता गया। एन एक्ट पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1720 prohibited the use of Indian silk and calicos in England। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया 1720 में। इसके अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, सिल्क और कैलिकोज जो कैलिकट से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता था उसको बंद कर दिया। इन 1811-12 द शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क वॉज अबाउट 33 विच फेल डाउन to 3% in 1815-51। the anti-Indian British policies were responsible for this। तो जो 1811-12 में कॉटन का 33 शेयर था, 11-12 में वो 33% से कम होकर 3% रह गया 1815-51 में। तो और दे इम्पोज हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्क। वो सिल्क के ऊपर ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा टैक्स लगा दिए। ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया विदाउट एनी ड्यूटी और एट अ वेरी नॉमिनल ड्यूटी। जो यहाँ आ रहे थे, इंपोर्ट हो रहा था मटेरियल, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, कोई नॉमिनल ड्यूटी नहीं थी। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट विद मशीन मेड गुड्स। तो ब्रिटिशर्स मशीन के साथ जो मटेरियल बना रहे थे वो इंडिया के हैंडमेड मटेरियल का मुकाबला नहीं कर पाई। द इंडियन ट्रेडर्स ऑल्सो सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स। तो इंडियन ट्रेडर्स थे वो ब्रिटिशर ट्रेडर्स के आगे टिक नहीं पाए। The British traders got many privileges and facility as compared to the Indian traders। क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी इंडियंस के मुकाबले। As a result of the anti-Indian economic policies of the British, the art of spinning and weaving, which employed thousands of workers in India, became extinct। तो एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो एंटी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज यूज़ की जाती थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो स्पिनिंग है और वीविंग है, कपड़ा बुनना, वो काम थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स का ख़त्म हो गया। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अनदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ रिवॉल्ट 1857। सो आवर क्लास इज ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।